یہ ہے وقت میڈیا اور آپ دیکھیں گے اعظم گڑھ کے کامراگینی کا ایک شاندار آل انڈیا مشاعرہ جو اتر پردیش یعنی کہ یو پی کے ایکس سی ایم لیٹ ہیموتی نندن بہوگنا صاحب کی یاد میں منعقد کیا گیا تھا۔ اس میں شرکت کی ان کی صاحبزادی محترمہ پروفیسر ریتا بہوگنا جوشی صاحبہ نے۔ خوبصورت تقریر انہوں نے کی، ضرور سنیے گا، لیکن پہلے 30 سیکنڈ کا یہ ایڈ سنیے۔ یہ پروگرام آپ تک لا رہے ہیں جینگو بنانا۔ جی ہاں، جینگو بنانا آ گیا دنیا کا پہلا انتاکشری اور گیمز کا ایپ۔ 60 سال کے بوڑھے یا 16 سال کے جوان، آپ سب کے لیے ہے جینگو بنانا کا یہ پیغام۔ آج ہی اپنے موبائل میں گوگل پلے سٹور میں جا کر ڈاؤن لوڈ کریں جینگو بنانا۔ جی ہاں، جینگو بنانا گوگل پلے سٹور میں جا کر ڈاؤن لوڈ کریں، لکھیں JANGOBANANA اور کھیلیں انتاکشری اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں اور اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ دنیا کے کسی بھی کونے سے کبھی بھی۔ سنے سنائے فلمی گیت اور مزہ لیجئے رومانٹک سیٹ اور فنی شاعری کا، ساتھ ہی جوکس اور بھی بہت سے نئے گیمز آپ کا انتظار کر رہے ہیں جینگو بنانا پر۔ اب ہمارے بیچ میں ہماری دیدی اتر پردیش کانگریس کمیٹی کی سابق صدر اور بھارتی راشٹریہ کانگریس کمیٹی کی پروکتا، لکھنؤ کینٹونمنٹ ایریا کی ودھائک اور جن کے نام سے مظاہرہ ہے سرگی ہیموتی نندن بہوگنا کی بیٹی آپ کے بیچ میں گفتگو کریں گی۔ آج اس لگاتار تاریخی مشاعرے کی صدارت کر رہے ہمارے بھائی، جن کو میرے والد اپنے بیٹے کے جیسے مانتے تھے، میرے بڑے بھائی وجے بہوگنا جو اتراکھنڈ کے چیف منسٹر تھے اور سب سے بڑی اولاد تھے میرے والد صاحب کے۔ اگر ان سے زیادہ کسی کو انہوں نے مانا تو زیڈ کے فیضان صاحب کو مانا۔ ہم نے ہمیشہ ان کو اپنے بڑے بھائی کی صورت میں دیکھا، اور آج وہ اس مشاعرے کی صدارت کر رہے ہیں، مجھے دلی خوشی ہے۔ اور کر کون رہا ہے؟ ساجد کو تو میں نے اپنا بیٹا مانا ہے، اور میں جانتی ہوں کہ اگر آج ساجد ہیموتی نندن بہوگنا جی کے نام سے اس مشاعرے کو مدعو کر رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہندوستان کی تہذیب کی نمائندگی کرتا ہے، اس تہذیب کی جو فکر نہیں کرتی ہے کہ کون ہندو ہے، کون مسلمان ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، جینی ہے۔ اس سرزمین نے ہر ایک کو اپنی اولاد مانا ہے، اور ہر اولاد نے اس سرزمین کو اپنے ماتھے سے لگا کر اس کو اپنا سب کچھ مانا۔ اور یہ تاریخی جگہ اعظم گڑھ کی تو وہ سرزمین ہے جس سے مولانا شبلی جی ہے، جنہوں نے کروڑوں ہندوستانیوں کو انگریزوں کے سے مکتی ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے آگے بڑھایا۔ تو یہیں پر کیفی اعظمی تھے جنہوں نے ترقی پسند سوچ کو شامل کر کے اور آخرکار اپنی سرزمین پر آ کر میزبان میں انہوں نے دکھا دیا کہ کوئی کتنا بھی اونچا کیوں نہ ہو، اس کا گھر اس کا اپنا وطن ہوتا ہے، اس کا اپنا گاؤں ہوتا ہے، اپنی سرزمین ہوتی ہے۔ تو میں سلام کرتی ہوں ایسی سرزمین کو، اور آج اس منچ پر انور جلال پوری صاحب کیا کہنے، ان کے ہم لوگ سب ان کے مرید ہیں۔ معین شاداب صاحب ہیں جو کہ ہمیشہ آتے ہیں اور کافی دور سے آتے ہیں آپ سب کے بیچ میں اپنے خیالات پیش کرنے۔ طائف المنو صاحب ہیں، کیسر خالد صاحب ہیں، حکیم عارف صاحب ہیں، اور جو ہمارا سب سے مضبوط یہاں کا استمبھ ہے، پلر ہے، جس کو کہتے ہیں کھمبا ہے، ندیم جاوید، ابھرتا ہوا ستارہ پوروانچل کا، جو ہندوستان کی سیاست میں ضرور ایک نہ ایک دن دیکھے گا، وہ مقام لے گا جس سے کہ پوروانچل فخر کرے گا، ہاں یہ ہماری اولاد ہے جس نے جا کر پورے ہندوستان میں ہماری آواز کو بلند کیا ہے۔ میرے والد ہیموتی نندن بہوگنا صاحب کی رگ رگ میں اس ملک پرستی تھی، رگ رگ میں ہندوستان کی بہتری تھی، اور ہندوستان کی تہذیب سے جو لگاؤ ان کا تھا، جو محبت ان کی تھی، وہ محبت ایسی تھی کہ آج 25 سال ان کے جانے کے باوجود
आप लोग उनको याद करते हैं और ऐसे मंच उनके लिए बनाते हैं। ये इस बात का गवाह है कि हमारा देश उससे मोहब्बत करता है जो मुल्क में रहने वालों से मोहब्बत करता है। हमारा मुल्क उससे मोहब्बत करता है जो इंसानियत से मोहब्बत करता है, उससे मोहब्बत करता है जिसके लिए इंसान सबसे आगे होता है। और मुझे फक्र है कि जब मैं पैदा हुई और बोलने काबिल हुई, सुनने काबिल हुई, तब से लेकर जब तक मेरे वालिद साहब का इंतकाल नहीं हुआ और उसके बाद आज तक अगर सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता जिसको बोलते हैं हिंदी में, अगर उसकी तरफ हमारे परिवार को जो लगाव है और अगर किसी भी दिन कुछ भी करना पड़े, हम अपने वालिद साहब की याद में और इस मुल्क की तहजीब की याद में कभी पीछे नहीं हटेंगे, आगे बढ़कर इस देश की सेकुलरिज्म को बचाने का काम करेंगे। ये हम आपको अपने से खुद से हमें वादा करते हैं, आपसे नहीं, खुद से वादा करते हैं। और उर्दू तो वो जुबान है जो मैं बार बार कहती हूँ, चाहे वो मोहन भागवत हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हो, जब प्रधानमंत्री थे, या मोदी हो या अडवाणी जी हो, जब इस दिल की बात को जुबान पे लाना होता है ना, तो उर्दू के अल्फाज को लिए बिना पूरा नहीं होता है। वो तो ऐसी मिश्री है जिसे घोल दो तो शरबत, ना घोलो तो पानी। इसलिए मैं समझती हूँ उर्दू जो हमारे मुल्क की जुबान है, इसी मुल्क से बनी है, इसी सरजमी पर हुई है, जिसको अमीर खुसरो ने, अली कुतुब शाह ने गोलकुंडा के और वाजिद अली शाह साहब ने जो उसके लिए नवाब साहब ने किया। मैं समझती हूँ 14वीं सदी में जो हमको ये जुबान मिली, आज पूरी दुनिया के सबसे शीरी जुबानों में गिनी जाती है, इसका नाम उर्दू है। और इसी उर्दू के आज बड़े बड़े शोरा हमारे बीच में बैठे हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ, कितनी कड़वी बात और कड़वी हकीकत ये एक बहुत ही मीठी जुबान में पेश करते हैं। और वो मीठी जुबान दिल को नश्तर की तरह जाके चुभती है, किसी के जहन को हिलाती है, किसी को सोचने में मजबूर करती है। और आज के जो हालात हैं जिसमें हमारे आइन को बदलने की कोशिश हो रही है, आज के जो हालात हैं जिसमें हमारे मुल्क में नफरत की लहर बनाने की कोशिश की जा रही है, मैं कहती हूँ कि अगर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारे ने हिंदुस्तान को एक करके खड़ा कर दिया था, अगर हमारे मुल्क को इकबाल ने आगे बढ़ा दिया था, हमको एकजुट करने की हिम्मत दी थी, और अगर कैफी आजमी साहब ने कहा कर चले हम वतन जहां, हम कर चले हम फिदा जहां वतन साथियों, और वो कानों में आज तक गूंजता, तब तक गूंजेगा जब तक हिंदुस्तान रहेगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर हम जनगण मन को याद करते हैं तो सारे जहां भी हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। ये हमारी जुबानों की खूबसूरती है। मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगी, उर्दू जुबान ने बड़े दौर देखे हैं, उन्होंने बहुत बड़े दौर देखे हैं, और शायरी के दौरों का तो क्या कहना। शायरी के दौरों में गजल और नज़्म ने खास तौर से तरन्नुम और साज के से को लेकर साथ जिस तरह का तहलका पूरी दुनिया में मचाया, वो आपके सामने है। और इसके बाद लगातार उर्दू जुबान बढ़ती गई। 18वीं सदी में अगर नज़्म और गजल सबसे आगे थी, तो फिर 19वीं सदी में आते आते हमारे सामने तरक्की पसंद शोरा आने लगे, और 20वीं सदी में हमारे सामने मुल्क परस्त शायरी शुरू हुई, जिसने इस मुल्क को अंग्रेजों की बेड़ियों से मुक्त कराया और उन्हें वापस जाने के लिए मजबूर किया। तो हमारी शायरी ने हर दौर में अपना रोल निभाया है। और मैं चाहती हूँ कि आज के इस दौर में, 21वीं सदी के इस दौर में, आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है अपनी कलम की स्याही को सूखने मत दीजिएगा, क्योंकि अगर आज आपकी कलम ठीक चल गई तो मैं यकीन दिलाती हूँ हमारी तहजीब को कोई जुम्मिश नहीं करा सकेगा, कोई हिला नहीं सकेगा। मैं आज कैफी आजमी साहब की सरजमी पे हूँ, तो मैंने भी उनका एक शेर लिखा है जो वतन परस्ती से जाकर जुड़ता है। उन्होंने लिखा है एक जगह पर, लंबा शेर है, मैं थोड़ा सा पढ़ूंगी। वतन परस्ती यही तोहफा है, यही नजराना है,
जो आवारा नजर लाया हूँ रंग में मेरे मिलाने के लिए, कतरा एक खून का है जिगर लाया हूँ अपने वतन के लिए। ये उनका शेर मुझे बहुत छू कर गया है और मैं चाहती हूँ कि उनकी रवायत को आप जारी रखें। और साजिद को मैं कैसी मुबारकबाद दूँ, इतना बड़ा प्रोग्राम एक शख्स सिर्फ अपनी हिम्मत पर अगर करने का जज्बा रखता है तो इस बात को ये यकीन दिलाता है कि अगर इंसान ठान ले तो क्या नहीं हो सकता है। अकेला ही चला था जाने मंजिल, लोग आते गए और कारवां बनता गया। आज आपको पूरी शाम खूब हमारे शोरा आपको अपनी बातें सुनाएंगे, जो जज्बाती भी होंगे, सियासी भी होंगे, जो हमारी तहजीब को भी कभी बखान करेंगे और जो इस मुल्क के लिए क्या मुफीद है उसका सबक भी देंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, खासतौर से साजिद जी का। और मैं समझती हूँ कि साजिद एक मिसाल है जो कि और लोगों को भी इनके कदमों पे चलना चाहिए, इनके तरह इनकी नज़ीर को मानना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और अब आप लुत्फ उठाइए इस फंक्शन। आजमगढ़ के कौंडरा गहनी में हुआ ये शानदार ऑल इंडिया मुशायरा ऑर्गेनाइज किया सर सैयद एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी ने। इस सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी हैं जनाब साजिद खान आजमी साहब। जनाब साजिद खान आजमी साहब इस मुशायरे के कन्वीनर रहे। ये उनका 11वां मुशायरा था। जी हां, जनाब साजिद खान आजमी साहब अपनी मेहनतों, अपनी कोशिशों से आजमगढ़ और उसके एतराफ में उर्दू की शमा को रोशन किए हुए हैं। और कर कौन रहा है? साजिद। साजिद को तो मैंने अपना बेटा माना है और मैं जानती हूँ कि अगर आज साजिद हेमवती नंदन बहुगुणा जी के नाम से इस मुशायरे को मधु कर रहा है तो इसकी वजह यह है कि ये हिंदुस्तान की तहजीब की नुमाइंदगी करता है, उस तहजीब की जो फर्क नहीं करती है कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, ईसाई है, सिख है, जैनी है। इस शानदार ऑल इंडिया मुशायरे की सरपरस्ती की गरीबों की हमदर्द उर्दू की मुहाफिज प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी साहिबा ने, जो कौमी तर्जुमान हैं कांग्रेस पार्टी की, साथ ही लखनऊ शहर की एमएलए भी हैं। इस मुशायरे में खुसूसी शिरकत की आली जनाब जेड के फैजान साहब ने, जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। जनाब जेड के फैजान साहब की मोहब्बतें जनाब साजिद खान आजमी साहब को बराबर मिलती रही हैं। इस शानदार ऑल इंडिया मुशायरे का इनॉग्रेशन किया जौनपुर के नौजवान एमएलए, हिंदुस्तान की राजनीति में तेजी से उभरते हुए सितारे, नौजवानों की दिलों की धड़कन जनाब नदीम जावेद साहब ने। और उन्होंने इस मुशायरे की इब्तिदा में अपने ख्यालात से भी लोगों को नवाजा। तो ये था कौंडरा गहनी आजमगढ़ का एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा जिसके कन्वीनर थे साजिद खान आजमी। उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, अगर आप पूरा मुशायरा देखना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट, पता है www.mushairalive.com। जी हाँ, www.mushairalive.com पर आप लेटेस्ट मुशायरे के वीडियो भी देख सकते हैं और ऑनलाइन मुशायरा भी सुन सकते हैं। अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमें फॉलो करें, पता है www.facebook.com/महफिल.मुशायरा। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे भी इंटरनेट की दुनिया में पहुंचे तो हमारी टीम को बुलाइए। हमारा मोबाइल नंबर है 09997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ शफी खान, वक्त मीडिया के लिए।